Good morning, class 12. So, this is the chemical bonding and molecular structure that we are discussing. So, as in the last video, I have discussed with you that is sp3 hybridization. So, while discussing the sp3 hybridization, I have discussed with you that carbon is having a unique property, right? So, the next concept which I am going to discuss with you, that is a unique property of carbon. Okay, unique property of carbon. So, what is a unique property of carbon? According to the concept of hybridization, कहते carbon is having a unique property that it can show three type of hybridization. तीनों तरह की hybridization ये show करता है, ठीक है? So the three types of hybridization will include sp, sp2 and sp3. So it includes three types of hybridization: sp, sp2 and sp3. ओके तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कंपाउंड शो करता है. अब करता कैसे है? सो फर्स्ट एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू टेक हियर दैट इज ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. So as you will see the example of ethane molecule, first of all you will write the formula of ethane. Okay, so while writing the formula, ये तो आपको आता है, ये आप सीख के आए हैं, है ना, 10th स्टैंडर्ड में, तो ये तो आपको आता है टू राइट द फॉर्मूला ऑफ इथेन. दैट विल बी इथ मीन्स टू कार्बन, एन मीन्स दैट इज हैविंग अ सिंगल बॉन्ड. सो द फॉर्मूला विल बी CH3. कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा इथेन का, है ना. सो व्हाट इज देयर. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालनी है. मतलब अगर मैं किसी एक की भी निकाल रही हूँ, इसका मतलब जो दूसरी कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू दैट इज हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट कार्बन. ओके, सो वी नो, okay, the same thing I am going to discuss here. So we know carbon, okay, the carbon is having the atomic number 6. Okay, so the electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2. यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की, 1s2 2s2 2p2, right? So the valence shell of carbon is 2s2 2p2. So I will make the orbital picture of it. Okay, so the orbital picture of carbon here, that is like this. So I have made the orbital picture, that is of the outermost shell, 2s with paired electron, 2p with unpaired electron. But you can see if I'll talk about this carbon only, ठीक है, मैं इसी कार्बन की बात कर रही हूँ पहले. So if I'll talk about this carbon, so अगर मैं इसको ओपनली बनाऊँ तो कार्बन इज हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कार्बन का. सो कार्बन इज बॉन्डेड 1 2 3 3 हाइड्रोजन, एंड फोर्थ वो किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन के साथ. सो दैट मीन्स इफ आई सी, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन हैं होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर मैं पेयर में बात करूँ तो कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर है, राइट. अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो हमारी वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है. और जो एंगल होता है दैट इज़ 109 डिग्री 0.8 मिनट्स. ये सारा हम वेस्पर में पढ़ के आए हैं. तो यहाँ पे देखिए कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स. इफ कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स देन व्हाट विल बी देयर? कार्बन शुड हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. बट हियर यू कैन सी कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 electrons only. So this is what? This is the which electronic configuration? This is the ground state. Okay, so in ground state carbon is not having that much sufficient electron. जैसे बाकी में मीथेन में हमने बात की, वही चीज़ आ जाएगी इथेन में भी, that it is not having that much sufficient electron, so it can form covalent bond with all the 4 atoms. So for that what is there? The excitation of electron is required. So carbon excited state. Okay, when the carbon is in its excited state, it is having
Okay, I'm using different pen so that it will be more visible to you. So excited state, it will be just this electron get excited to this level. ठीक है, so this is the 2s, this is 2p. Now yeah, here you can see the electrons, 4 unpaired electron. So this 4 unpaired electron, they mix up. When they get mixed up, they result a formation of which hybridization? sp3 hybridization. Okay, the hybridization formed is sp3. okay, सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी? sp3. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए. अब ये कार्बन भी तो सेम ही है, इसमें भी देखिए 3 हाइड्रोजन होंगे, 4th कार्बन है. सो सेम हेयर ऑल्सो व्हाट विल बी देयर? इट इज़ ऑल्सो हैविंग विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड वन थिंग मोर, जो बॉन्ड्स बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. देयर इज नो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होंगे. दैट मीन्स हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैप होगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट. Okay, so when we will make the structure of ethane, then what you will see, you will clearly observe that how the bonds those are formed. Okay, so what we will do, I will just directly मैं orbital picture बनाती हूँ इसका, instead of doing the hybridization के mix होके sp3 किया, क्योंकि हम ये चीज़ कितनी बार कर चुके हैं बेटा. ठीक है, we have discussed number of times. So I will directly make what? I will directly make the orbital picture, right? So for the orbital picture, what will I do? I will keep the carbon in the center. Okay, this is the carbon. So हमने कुछ ऐसा बनाया था, मैं इन जनरल पहले बना के बताती हूँ. कुछ ऐसा बनाया था लास्ट जो हमने एग्जाम्पल्स की. इट इज़ लाइक दिस. कुछ ऐसा था, राइट? ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे. ठीक है, दीज आर नेगेटिव, दीज आर द पॉजिटिव लो. वैसा कुछ बनाया था, तो यही कुछ मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ. ठीक है, सो हियर यू विल सी दिस इज द 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी लोब आ गई ऑपोजिट वाली. ठीक है, अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, यहाँ पे यहाँ नहीं बनेगा, मैं आपको बताती हूँ. चलो अभी मैंने यहाँ पे बना ही दिया है, सो आई विल मेक हेयर ओनली. ओके, अब देखिए नेक्स्ट होगा यहाँ पे, यहाँ हो गया, और यहाँ पे यहाँ हो गया. ठीक है, सो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट कि होगा क्या? ये एक कार्बन था, ऐसे ही सेकंड कार्बन होगा. ठीक है, यहाँ पे द सेकंड कार्बन. सो सेकंड कार्बन सेम ऑर्बिटल पिक्चर. ठीक है, हियर here, here, here. So इसका भी जो लोब था वो इधर नहीं जाना था, that will be in this. ठीक है, so ये मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए. ठीक है, इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए भी. ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सो 4 ऑर्बिटल्स आ गए. अब देखो ये मैंने 4 बनाई, यहाँ पे होगी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सेम नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. तो कुछ ऐसी लूप्स बनाई मैंने. ठीक है, अब क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल हैव, अभी मैं आपको पिक्चर बना के बताती हूँ प्रॉपर. वहाँ मैंने बनानी थी बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ. ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे रखने हैं कि गैप कम से कम हो दोनों लोब्स के बीच में. ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए. अब देखिए यहाँ ये सेकंड कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, अब इसकी लोब और बाकी ठीक है, इसकी लोब यहाँ पे, इसकी लोब यहाँ पे, इसकी लोब यहाँ पे. ठीक है, सो कुछ यहाँ ऐसा बनेगा मेरे पास किसका स्ट्रक्चर? इथेन का. अब ये कौन सा ओवरलैप है? दिस इज़ अ एंड टू एंड ओवरलैप है. ये भी हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैप ही बोलेंगे. सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ पॉजिटिव लोब, दिस इज़ अ पॉजिटिव लोब. सो व्हाट इज़ देयर? सेंटर में क्या है यहाँ पे? आई विल शो विद द रेड पेन.
इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, सो वन इलेक्ट्रॉन कार्बन विल शेयर विद ईच अदर एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्ड, ये एंड टू एंड ओवरलैप है, सो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा, सो व्हेन इट विल बी ओवरलैप विद द हाइड्रोजन, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये तो हम करते ही हैं, सो ये भी हेड टू हेड है, ये भी सिग्मा, सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या होगा, so here also it is a sigma bond, for this one also sigma bond, so here also sigma bond, here also sigma bond, here also sigma bond, so all are the sigma bond, none of it is pi, they all are the head to head overlap. in general अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, so it will be कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देखिए ज़रा, कार्बन कार्बन, hydrogen 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 and hydrogen, so the angle here, each angle is what 109, ठीक है, हर एंगल यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 109 डिग्री 0.8 मिनट्स, सो ये हमारा एंगल है, आप कहीं भी मेजर करोगे सेम होगा। सो अरेंजमेंट जो है इसका अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, अरेंजमेंट जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता चली गई है कौन सी है, sp3। तो ये है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो उसमें पहले मैंने बात कर ली कि कार्बन sp3 शो करता है, तो sp3 में मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। सो द नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय कार्बन, ओके। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन, वहाँ मैंने इथेन लिया था, अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ इथीन, उसी का भाई बहन है ना, डिफरेंस कहाँ पे है, इथ टू कार्बन, इन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन, डबल बॉन्ड, सो हियर आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ इथीन, राइट। सो इथीन, इन केस ऑफ इथीन व्हाट इज़ देयर, अभी यहाँ पे होगा क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एच 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 एच, दिस इज इथीन, ये इथीन है ना भाई, दिस इज इथीन। सो यहाँ पे फिर से कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, फिर से वही चीज़ें, ओके, फिर से वही चीज़ें होंगी जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। सो हियर व्हाट विल हैपन, द कार्बन ग्राउंड स्टेट पहले लिखेंगे, जो पहले लिखते आए हैं, ठीक है। व्हेन द कार्बन इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2, ये तो रट गई होगी आपको, 2s2 2p2, so this is the ground state electronic configuration of carbon. So what will happen now, how many bonds carbon is making here, carbon is making 4 bonds, again 2 with the, if I'll talk about this carbon, अगर मैं इसी कार्बन की बात करूँ, so this carbon is making 2 bonds with these hydrogen and 1 bond with the carbon, 2 bonds with the carbon, so total 4 unpaired electron is required, same thing, so I will directly make, लेकिन आपने हर स्टेप फॉलो करना है जब एग्जाम में करना है, ठीक है। सो कार्बन यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी किसकी ज्योमेट्री, कार्बन इन द एक्साइटर स्टेट, ओके। सो आई विल राइट कार्बन एक्साइटर स्टेट, मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल पिक्चर आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। सो 2s और 2p की बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल की, सो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, एक्साइटर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये एक कार्बन था, ऐसे ही दूसरा कार्बन होगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, द पॉइंट इज what is there except double bond, except double bond, how many electrons are there, are required, how many bonds are there, 1 2 3, डबल बॉन्ड एक छोड़ दो, 3 bonds है, 3 bonds है, so how many unpaired electron are required now, 3 unpaired electron, for 3 bonds 3 unpaired electron are required for carbon. So what happened, the double bond is not counted as a part of hybridization, okay, the double bond that is not counted as a part of hybridization, so this electron or this orbital is left. So
here what will be there, 1s and 2p, these get mixed and result in the formation of which type of hybridization, sp2 hybridization. And you already know whenever the hybridization is sp2, right, और मतलब 3 बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ मैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, पता है ये आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा आपके माइंड में, व्हाई दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पाई बॉन्ड। ओके, होता क्या है, व्हेन द first bond is formed, that is formed between this and this carbon, that is a sigma bond, that is a head to head overlap। ओके, आपको याद होगा जब मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको पढ़ाया था, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट sigma bond is formed along the internuclear axis, right? One bond is already formed along the internuclear axis, so this axis is busy. So what the other options left for the, if double or triple bond could be there, मैंने ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पाई बॉन्ड, सो व्हाट द अदर ऑप्शन शुड बी देयर, दैट दे कैन फॉर्म अ साइड वाइज ओवरलैप, वो साइड से ओवरलैप करें, और जो साइड से ओवरलैप करता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज़ नोट डाउन कि होगा क्या कि मैंने आपको कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी, फिर आपने एक्साइटेड स्टेट देखी। एक ट्रिक भी है कि अगर आप किसी की आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो उसमें ये देख लो उसके डबल बॉन्ड कितने हैं। तो अगर तुम इस डबल बॉन्ड को छोड़ दो, देखो ट्रिक है, डबल बॉन्ड को छोड़ दो, कितने बॉन्ड बचे, 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल का मतलब क्या है, एक एस होगा 2 पी होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। द पाई बॉन्ड, द डबल बॉन्ड, दैट इज द सेकेंड बॉन्ड दैट इज नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन and electron from this carbon, then that electron is not considered the part of hybridization because the already there is a sigma bond that is formed by head to head overlap. So the another option that is left, that is a side wise overlapping, and whenever there is a side wise overlapping, that is a pi bond, and which is considered to be a weaker bond than that of the sigma bond, and that's why that is not the part of hybridization. So the hybridization of carbon here is sp2, and the geometry will be trigonal planar, angle will be 120 degree. Okay, same for this carbon. So now I'm going to make the orbital picture. Okay, so this is the first carbon, this is another carbon. Okay, I don't think so यहाँ पे बनेगा नहीं, I have to use a little more space, यहाँ पे देखते हैं। Okay, this is a 2 carbons, these are the 2 carbons. Okay, now you already know 3 of them are forming, 3 bonds are sigma bond. ओके, तो सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको क्या समझाया, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सो इफ द बॉन्ड इज इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, सो एक ऑर्बिटल तो यहाँ बनेगा, दिस इज ओवरलैप अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, राइट। सो द नेक्स्ट इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विद 2 more sigma bond, sigma sigma, same for this carbon, sigma sigma, so sigma bonds are already formed। ठीक है, देखो सिग्मा कैसे बना, फिर से समझा देती हूँ। एक तो कार्बन कार्बन ने खुद, दे हैव शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, ठीक है, ये तो आपको इन जनरल यहाँ से पता चल गया दैट दे हैव शेयर द इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, 2 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में शेयर किए, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है दैट विल बी द सिग्मा, सेकेंड वन विल बी द पाई, सो हेयर दैट इज फॉर्म्ड ऑलरेडी। सो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली पाई बॉन्ड इज लेफ्ट। अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन, बाकी तो जो बचे थे, दिस ओवरलैप विद द 1 हाइड्रोजन, दिस ओवरलैप विद द अनदर हाइड्रोजन, राइट। सो सेम फॉर दिस कार्बन। अब ये हो गए सिग्मा, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद पाई, राइट। अब जब मैं पाई की बात करती हूँ, ये इसका ये लोब बनानी रहेगी छोटी वाली, ठीक है, सो ऐसा कुछ बनेगा। अब जब मैं पाई की बात करती हूँ, पाई इज फॉर्म्ड अ साइड वाइज ओवरलैप, तो साइड वाइज ओवरलैप कुछ ऐसा होता है, भी देखना ध्यान से, ठीक है। ये लोब सेम साइज़ की बनानी है, ये थोड़ी छोटी बन गई है, मैं इसको बड़ी कर देती हूँ।
सो कुछ ऐसी होंगी। अब ये फिल्ड है, फिल्ड किसके साथ है, इसको भरा हुआ दिखाना है, ठीक है। सो ये फील्ड है, सो दे ओवरलैप साइड वाइज विद ईच अदर, ऐसे साइड वाइज ओवरलैप होगा एंड दैट इज नोन टू बी अ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये एक ही बॉन्ड है, दो नहीं बोलना। जब तुम इसको मतलब इसको थ्री डायमेंशनल में इफ़ यू विल सी, देखो ये तो एक ट्रायंगल बन ही रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, सेम दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। सो ये जो है व्हेन यू विल सी, तो ये कुछ ऐसे पड़ा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कुछ ऐसे पड़ा होगा, तो ये लोग ऐसे होंगे, ठीक है, थ्री डिमेंशनल में। तो मतलब ये बॉन्ड कुछ ऐसे साइड वाइज से बना होगा थ्री डिमेंशनल में, ठीक है। दैट इज़ नॉट एबल टू बी शोन दिस पेज बिकॉज दिस इज टू डिमेंशनल। तो थ्री डिमेंशनल में इट विल बी शोन, इफ़ यू विल सी प्रैक्टिकली इसकी एनिमेशंस आप देखते हो, इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि यहाँ पे कैसे मतलब इसका अरेंजमेंट बनता है। सो दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे कार्बन की फिर से यूनिक प्रॉपर्टी आ गई, दैट इट शो sp2 hybridization. The next example I am leaving to you so that you also do practice. Now I am with sp hybridization, sp3 तो हम कर चुके हैं, sp hybridization. So you will solve this by self. The example I am providing to you, that is ethane, the ethine molecule. So you can easily see 1 sigma 2 sigma 1 sigma 2 sigma, so 2 pi bonds are there. मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब सॉल्व आपने करना है इसको, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन का। थोड़ा सा और पड़ा है ये, उसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन दिस यूनिट विल बी ओवर। इट इज़ अ लेंथी यूनिट बट you have to learn it. Thank you very much.